A very good morning children. कैसे हैं बेटा आप सभी? Welcome to the psychology classroom. Okay, so children, today the date is 9 and जो हम लोग हमेशा कर रहे हैं, we are doing practice. The more and more you will practice, you can definitely find out its response in your results. Examinations are very near to you. So just keep your mind that very few days are there for your examination. So I have to be prepared myself accordingly. We are discussing the objective type question from chapter 3rd, which is a stress chapter. So from this chapter we are discussing the objective type question. The chapter name is Meeting Life Challenges. So around I think around more than 40 questions I had discussed with you from this chapter. Fine. Chaliye, some of the fill in the blanks I am going to discuss with you. So let's start. This is your chapter. So start with the 41 question. 41 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41. So is a procedure. It is a procedure in which clients are. It is a procedure in which clients are taught to. It is a procedure in which clients are taught to. It is a procedure in which clients are taught to release all the tension. Taught to release all the tensions. All the tensions in their. Release all the tensions in their body. So आंसर करिए बच्चों, क्या क्वेश्चन क्या आंसर होगा इसका? क्या वो कौन सा वो प्रोसीजर है जिसमें क्लाइंट को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी सारी टेंशन को अपने बॉडी से रिलीज कर दे, सारी टेंशन को अपनी बॉडी से रिलीज कर दे? क्या है वो? The answer of this question is relaxation training. It is known as relaxation training. A very important question. Please आप इसे नोट डाउन करेंगे. Relaxation training. See children, watching the video is very must for you all as we are discussing the questions which you will maybe not found in your directly in your NCERT. ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. Events or situations in our environment. Events or situations in our environment. Events or situations in our environment that cause stress
is called, that stress is called dash. Events or situation in our environment that cause stress is called. बताइए क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इवेंट्स और सिचुएशन जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं वो हमें स्ट्रेस देते हैं, तो क्या कहेंगे हम उसे? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेसर्स. हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेसर्स. राइट डाउन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. राइट डाउन इट. Okay, moving to the next question. Question number 43. Question number 43. Dash is the maintenance of positive adjustment under challenging life conditions. क्या आंसर होगा बताइए? क्या है जिसको कहते हैं इट्स द मेंटेनेंस ऑफ डैश इज द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव एडजस्टमेंट. पॉजिटिव एडजस्टमेंट करते हैं हम अंडर चैलेंजिंग लाइफ कंडीशन, तो उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इट इज नोन एज? सो इट इज नोन एज रेजिलियंस. सो द आंसर इज रेजिलियंस. स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे. RESILIENCE. Resilience. Okay, so sorry. Write down the question and answer. बच्चों, I'm making the solution of the objective type questions. Please watch the video और solve करिए. Important है आप सभी के लिए. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपने लिख लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. Interaction among behavioral neuroendocrine interaction among behavioral neuroendocrine and immunological processes of immunological immunological process of adaptation. Interaction among behavioral neuroendocrine and immunological processes of adaptation is called dash. बताइए क्या होगा? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इंटरेक्शन अमंग neuroendocrine
behavioral and immunological process of adaptation. अगर हम ये तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन करते हैं, इन तीनों 3 थिंग्स का हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि बिहेवियर का, न्यूरो एंडोक्राइन में 2 चीज़ें हैं, न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस का, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड? सो इट इज कॉल्ड साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसे हम कहते हैं साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट है जो आपकी बुक में दिया गया है, बट इसको एक डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन डिफरेंट वे में आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ, कुछ और आंसर करके आ जाओ कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, आई जस्ट होप आपने लिख लिया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। Dash is the abilities for adaptive and positive behavior, abilities for adaptive and positive behavior, abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively, abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the environment is known as dash. Here in this video I am maximally discussing with you the fill in the blank, or don't consider it like the fill in the blanks. Maybe these questions can be asked to you in any way, like it is given and it can be given the options, or maybe the options were not given, or maybe इसी questions को just mold करके और change करके आपसे पूछा जाए, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। अडैप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हमारा जो बिहेवियर रहेगा वो अडैप्टिव रहेगा, सिचुएशन से एडजस्ट होने वाला रहेगा और पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। सो दैट इनेबल द इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, और यही वो चीज़ है जो इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से अच्छे से डील करें। तो इसे हम क्या कहते हैं? सो इट इज नोन एज लाइफ स्किल, इसे कहते हैं लाइफ स्किल। लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवाए हैं आप सभी को, बट इट इज समथिंग इन अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू नोट इट डाउन। समटाइम क्या होता है कि आंसर वही होता है, बट उसको पूछने के जो क्वेश्चन है, वे है, मेथड है, वो चेंज हो जाता है, एंड इट कंफ्यूज द चाइल्ड ऑल्सो कि ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जबकि आपने पढ़ा है। यू ऑल हैव रेड अबाउट द लाइफ स्किल, यू ऑल नो दैट व्हाट इज लाइफ स्किल, लाइफ स्किल क्या होता है, ठीक है।
सो नोट डाउन कर लेंगे इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। 46 पे चलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। Dash is a set of beliefs. Dash is a set of beliefs about oneself. Dash is a set of beliefs about oneself. Dash is a set of belief about oneself. The world किस चीज को कहते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ, अपने बारे में है, दुनिया के बारे में है, एंड हाउ दे इंटरैक्ट So dash is a set of belief about oneself. किस चीज को हम कहते हैं कि एक तरह से बिलीफ है अपने बारे में, वर्ल्ड के बारे में, एंड हाउ दे इंटरैक्ट. सो आंसर करिए चिल्ड्रन, व्हाट इज विल बी द आंसर. इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? आई नो यू ऑल नो द आंसर. So it is known as hardiness. It is called as hardiness. Everybody write down this question in your copy with the answer and learn it also. Children, it doesn't mean that you are watching this video so you have to only see the video. You have to write down all these questions in your notebook and you have to learn it. लर्न करेंगे, फिर अपने से इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखेंगे वेदर यू आर राइट और नॉट. आप राइट है कि रॉन्ग है, या फिर क्या कितना आपने लर्न किया. बेसिकली यू ऑल हैव टू डू द सेल्फ इवैल्यूएशन. आपको क्या करना है? सेल्फ इवैल्यूएशन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. Question number 47. Question number 47. Okay, very easy and interesting question. Dash involve feelings. These all questions which I am making you to solve is belong to the chapter 3, children. Okay, dash involve feelings of tension and uneasiness. Feeling of tension and uneasiness that occur before, ठीक है, during and after the examination. ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको हम कहेंगे इट इज अ फीलिंग ऑफ टेंशन एंड अनईजीनेस, जो कि एग्जामिनेशन से पहले आता है, एग्जामिनेशन के टाइम भी आता है और मे बी एग्जामिनेशन के बाद भी आता है. तो बेसिकली इट इज ऑल रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. तो इजी टू आंसर द क्वेश्चन.
आंसर करना इसका इजी है. So yes children, the answer of this question is examination anxiety. This is called examination anxiety. इसी को ही तो हम लोग examination anxiety कहते हैं, जिसमें कि टेंशन और अनइजीनेस की फीलिंग होती है. एग्जाम के टाइम से पहले भी होती है, एग्जाम के टाइम भी होती है और एग्जाम के बाद भी होती है. फॉर द रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा. एग्जाम से पहले भी होती है, पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, वेदर आई नो इट और नॉट. एग्जाम के टाइम भी होती है, वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन विद इन अ टाइम और नॉट, और कैसे होगा. आफ्टर द एग्जाम भी आती है, आफ्टर एग्जाम व्हाट विल बी द रिजल्ट, किस तरह से इवैल्यूएशन होगा, व्हाट विल बी हैपन. सो हर समय एक तरह से अनइजीनेस फीलिंग रहता है. ठीक है, टिल व्हेन द रिजल्ट केम. ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एंजाइटी. नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर कॉपी. आगे बढ़े. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. आपने लिख लिया होगा. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48. क्या क्वेश्चन नंबर 48. The pattern of responses, the pattern of responses, the pattern of responses an organism makes to a stimulus, the pattern of responses an organism makes to a stimulus the pattern of responses an organism makes to a stimulus event that disturb the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. What this phenomena is called. Please children write down this question in your notebook. I hope the board is properly visible to you and what is written over here also visible to you. The pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturb the equilibrium and exceed a person's ability to cope. What this phenomena is called? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. ये पूछ रहा है एक तरह का पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है टुवर्ड द स्टिमुलस इवेंट, किसी स्टिमुलस के टुवर्ड, जो उसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है और पर्सन की कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड करती है. हम उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? व्हाट दिस फेनोमेना इज कॉल्ड? आंसर करिए. आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्ट्रेस. उसे हम कहते हैं stress. This is also one of the definition of stress also. ये stress की definition भी है. So क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है और इसको लर्न करना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. So 48 question I had discussed with you. If you all have written it, so we should move
over to the next question. Okay. So I should rub it. आप नोट डाउन करनी है. क्वेश्चन नंबर 49. चलिए 49 क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर है बेटा. मैं अपने एंड से आपको मोर देन आई थिंक मुझे लग रहा है 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए चैप्टर 3 से. अब आप कितना उसको कर पा रहे हैं, ठीक है. अब आगे का काम तो आप ही को करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 49. So moving to the question number 49. The process of trying to manage demands the process of trying to manage demand that are appraised as the process of trying to manage demand that are appraised as taxing or exceeding one's resources is called dash. क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बच्चा. पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू मैनेज डिमांड, प्रोसेस ऑफ वो प्रोसेस जिससे कि डिमांड्स को हम लोग मैनेज करते हैं एंड उसे अप्रेज किया जाता है एज टैक्सिंग और एक्सीडिंग वंस रिसोर्सेज. अब डिमांड्स को मैनेज करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा. डिमांड्स को मैनेज करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा. डिमांड्स जो हैं वो अप्रेज्ड एज टैक्सिंग और एक्सीडिंग द रिसोर्सेज. तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कई बार आप पढ़ चुके हो. तो इट इज कॉल्ड कोपिंग. आप जब अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हो तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोपिंग करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर डूइंग कोपिंग विद द स्ट्रेस. राइट डाउन द आंसर. चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50. हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. ठीक है, इतना भी आप प्रैक्टिस करोगे और आई डेफिनेटली कम अप विद मोर देन 50 क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, अदर फ्रॉम ईच चैप्टर यू इफ यू क्रॉस टू प्रैक्टिस मोर देन 100 क्वेश्चन, सो नो डाउट कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं. ठीक है, बट व्हेन यू डू, इट्स नॉट लाइक मैंने तो बोल दिया बट आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, here I want to add children around 50 questions I had discussed with you and I just hope कि आप उससे practice करो. Please children write down these questions in your notebook and make it check it with me also. ठीक है, आप इनको चेक भी कराएंगे मुझसे. फाइन, ओके. सो इन केस चिल्ड्रेन इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, लाइक जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, आपको लगता है कि मुझे ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है या आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, सो आस्क टू मी इन द क्लासरूम. ओके,
Thank you so much, children, for carefully listening to me. Thank you.